Okay, beta ji. As you have already studied that all living things, in fact, all the things around us can be classified into living and non-living. Further, we have also studied that all living things carry out certain basic functions. Can Gurleen Kaur tell me what are the basic functions living things carry out? Gurleen Kaur? Yes. Kashish. Kashish? I guess you're not able to unmute yourself. It's okay. Let me, as we have discussed in Good the morning, ma'am. As we have discussed, Hanji, Kashish, please. Ma'am, digestion, excretion, respiration, reproduction, these are certain processes. Very good. These are certain basic functions which all living things carry out. And these functions, how are they carried out? There are different sets of organs which are carrying out these functions. And do you know what is the structural unit of an organ? Yes, it is cell. So in this chapter, we'll be studying more in detail about cell, its structure and its function. What are the different types of cells? Where are these cells? What are the shapes of these cells? What are the functions? What is the composition of these cells? We'll be studying about this all in this chapter. So we'll be studying about cell, its structure and function in this chapter. It was Robert Hooke, an Englishman, who discovered the cell in 1665. He observed the slices of cork, yani ki bark of the trees, under his self-styled microscope. He observed these cork cells under the microscopes and he noticed certain box-like structures. जैसे कि ये यहाँ पर दिखाया हुआ है, ऐसे कुछ उसको observe हुआ, box-like structures, compartments, जो कि एक definite boundary से separated थे. And it looked to him, these boxes appeared to him like honeycomb. Honeycomb is looking something like this. तो इस तरह से उसको compartments नजर आए. He could relate to a honeycomb. And in a magnified view, the cork cells look or something appear like this. तो उसने ऐसे कुछ देखे and then he coined the term cell for each box. और जो ये रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया, ये जो बॉक्सेस या सेल्स जो कॉर्क में थे, they were actually dead cells. Now cells of living organisms could be observed only after discovery of improved microscope. उसने तो dead cells देखे थे, तो living cells को देखने के लिए the first person to witness a live cell under a microscope was Antony van Leeuwenhoek 1674 में. जब उसने वाटर ड्रॉप में एक सिंगल वाटर ड्रॉप को उसने पॉन्ड वाटर से वाटर ड्रॉप लिया और उसमें उसको उसने ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप, अगेन अंडर हिज ओन सेल्फ स्टाइल्ड माइक्रोस्कोप, एंड ही ऑब्जर्व्ड सर्टेन टाइनी, वेरी टाइनी organisms, and he named them as animalcules, that means little animals. He probably saw some unicellular organisms there. So very little was known about the cell for next 150 years after Robert Hooke's discovery or observation. But today हमें बहुत कुछ पता है about the cell structure, its function, because improved microscopes with very high magnification are available to see all these things. We know that we cannot see them with our own eyes. We have to use a microscope. So cell जो है, it is the basic structure and functional unit of a living organism. जितने भी living organisms है, they are made up of one or more cells. ठीक है? तो
तो सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म जो है दे कैन बी कंपेयर्ड विद ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग। जैसे एक एक ब्रिक मिलकर जो है वी कैन मेक द होल वॉल। इसी तरह से अगर हम ये सेल्स जो आपको अनियन पील इज अनियन के अंदर में जो एक ट्रांसलूसेंट सी कवरिंग होती है, अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप तो हमें ऐसे सेल्स नजर आते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं, these cells they appear like one after the above stacked and making the whole of the peel। तो जैसे ये ब्रिक्स एक के ऊपर एक स्टैक करके अरेंज कर पूरी वॉल बन जाती है, ऐसे ही सेल्स भी अरेंज कर पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो but otherwise if we look at these cells, living cells are complex living structures. They are complex living structures unlike the bricks which are non living। ठीक है, तो ये जो और एक और में जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें जो ये ब्रिक्स होते हैं दे आर बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैविंग डिफरेंट डिजाइन, शेप, साइजेस। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो सेल्स हैं दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं invariably show variety in cell number, shape and size। अब how do scientists observe and study these living cells? Obviously scientists जो होते हैं they use microscopes जो कि मैग्नीफाई कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स को, एंड प्लस when you have to look at a living cell तो आपको उसे स्टेन करना पड़ेगा। स्टेन इन द सेंस वी हैव टू यूज अ डाई, कलर्ड डाई को यूज करना पड़ेगा सो दैट व्हेन वी पुट इट ऑन द लिविंग टिश्यू और पार्ट विच इज टू बी ऑब्जर्व, बिकॉज वो बहुत टाइनी होता है, उसको जब हमने ऑब्जर्व करना है तो जो पार्ट्स होते हैं वो कलर हो जाते हैं। इससे सेल को स्टडी करना और उसके डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी जो सभी के शेप हैं, साइज हैं, इसमें आप देख सकते हो दे आर डिफरेंट। अगर आप रिकॉल भी करते हो तो हमारे आसपास प्लांट्स, एनिमल्स आप देखोगे उनके सबके डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट साइजेस हैं। उनके ऑर्गन्स भी जो होते हैं दे वेरी इन शेप, साइज, नंबर, इन सब में वेरी करते हैं। सो लेट अस स्टडी समथिंग अबाउट देम। सबसे पहला वेरिएशन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स जो शो करते हैं दैट इज इन नंबर। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स present in a maybe a small ant or maybe an elephant or a big tree? We cannot even imagine. It runs into billions and trillions. Human body जो है वो itself is made up of trillions of cells. You cannot count, which vary in size and shape also. तो different organisms जो होते हैं they have different number of cells. ऑर्गेनिजम्स जो कि मोर देन विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, अगर एक सेल से ज्यादा से जो ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं उनको हम टर्म करते हैं, वी यूज द टर्म फॉर देम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स मेनी, तो मेनी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे इंसेक्ट हो गया, ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी, कोई ट्री हो गया, कोई एंट, रैट, कैट, माउस, जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं सब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन, दे आर बिग इनफ so they can be seen without the help of microscope। ठीक है, they are macroscopic। लेकिन at the same time there are organisms which are made up of just a single cell, one single cell। This is a single cell। amoeba is a single celled organism। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर एक सेल, सिर्फ एक सेल देखा जाए तो ऐसा एक सेल, नॉट द सेल्स ऑफ आवर बॉडी बट वन celled organism is called as a unicellular organism। uni means one। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनस, they have to be seen under the microscope। and now you can see the different shapes these unicellular organisms have। और ये शेप देखिए जो multicellular organisms have। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो सारे फंक्शन, नेसेसरी फंक्शन करता है जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑन द होल करता है। यानी कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, एज वी हैव जस्ट नाउ टॉक्ड अबाउट, कि उसके जो बेसिक फंक्शन है जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, वो पूरा ऑर्गेनिज्म ऑन द होल करता है हमारी बॉडी। लेकिन यहाँ पर अमीबा या फिर यूग्लिना या पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनस या और जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ना,
वो सारे के सारे वो सारे फंक्शन इंडिविजुअली करते हैं, अपने आप पूरे सारे फंक्शन. The amoeba, all these unicellular organisms are carrying out respiration also, excretion also, digestion also. तो हमने ऑलरेडी क्लास 7th में किया है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है अमीबा, इट कैप्चर्स फूड, डाइजेस्ट फूड, रिस्पायर्स, एक्सक्रीट्स, ग्रोज, रिप्रोड्यूसेस. और ये सारे के सारे फंक्शन वही सारे फंक्शन है जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज परफॉर्मिंग. और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में दे आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको हम टिश्यूज कहते हैं. लेकिन यहाँ पर मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स आर कैरिंग आउट दैट फंक्शन. लेकिन यहाँ पर जो है एक सिंगल सेल इज कैरिंग आउट all these functions. All right, so ये टिश्यूज जो हैं दे मिलकर फॉर्मिंग ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन सिस्टम में ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं. सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफर इन नंबर ऑफ सेल्स and they are classified as multicellular or unicellular organism. Another variation which living organisms show is the shape of cells. Look at these figures. ये देखिए फिगर, आपको ये फिगर देखते हैं. अगर आप रिकॉल करेंगे तो ये भी फिगर आप देख सकते हैं. यहाँ पर देखिए ये सेल जो है अमीबा सेल, इट इज अपीयरिंग इररेगुलर इन शेप, है ना. जबकि यहाँ पर देखिए ये पैरामीशियम जो है इसको स्लिपर शेप्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं. इसकी शेप कुछ हमारी चप्पल की तरह, स्लिपर की तरह है. यूग्लिना देखिए, इट इज हैविंग दिस काइंड ऑफ शेप. क्लोमाइडोमोनास इज राउंड इन शेप. तो अगर हम ये अमीबा को देखते हैं, एंड एज वी हैव स्टडीड इन क्लास 7th आल्सो, कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप. और इसकी शेप जो है वो कैसे चेंज करता है? बाय प्रोट्रूडिंग आउट दिस पार्ट, वन पार्ट इन ऑफ इट्स बॉडी, और इसको हम सूडोपोडिया कहते हैं. सो इट इज एबल टू मूव विद द हेल्प ऑफ दिस फॉल्स फीट, जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं. और ये प्रोजेक्शंस जो होती हैं, कभी ये यहाँ पर प्रोजेक्शन अपीयर हो जाती है, कभी इधर को हो सकती है, एंड इसी की तरह से इसी की हेल्प से वो मूव करता है. तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं. जैसे कि अमीबा को हम कंपेयर करेंगे, वील कंपेयर अमीबा विद ये इररेगुलर शेप्ड सेल, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी शेप चेंज कर सकता है. सिमिलरली ह्यूमन बॉडी में WBC होता है, which is a cell of human blood. तो ये भी एक सिंगल सेल है जो कि अपनी शेप चेंज कर सकता है, और कोई शेप नहीं चेंज कर रहा है. लेकिन हमारी बॉडी में जो ह्यूमन ब्लड है उसमें एक तरह के सेल, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. तो इसमें जो WBC है, इट कैन चेंज इट्स शेप. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? WBC इज अ सेल, whereas amoeba is a full-fledged organism which is capable of independent existence. अब यहाँ पर ये अगर आप WBC देखोगे तो ये irregularly shaped है, नो डाउट. लेकिन जो अमीबा है ये भी इरेगुलर शेप्ड है, लेकिन ये एक अपने आप में ऑर्गेनिज्म है. ये भी एक सेल है, सिंगल सेल है, लेकिन ये अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. बट नॉट द सेम केस विद द WBC. इट कैन चेंज इट शेप बट इट कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली. नाउ और फिगर देखिए, यहाँ पर और शेप्स देखिए. जनरली सेल्स जो होते हैं राउंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है. कुछ ऐसे स्पिंडल शेप, ये जो स्पिंडल शेप सेल है, स्मूथ सेल है, विच इज फाउंड मसल सेल. मसल्स के, हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर. तो वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक. उनमें से एक टाइप ऑफ मसल्स जो है, दे विल शो this, they have this kind of shape. This will be studying in class 9th again in detail. और ये देखिए फैट सेल है, एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं. ये ओवम है, ये स्पर्म है जो मेल एंड फीमेल गैमीट है, जिनके बारे में हम चैप्टर रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे. ये भी देखिए इसकी शेप कितनी डिफरेंट है, इट्स नॉट स्फेरिकल एट ऑल. तो ये देखिए, ये इनके एंड्स जो हैं पॉइंटेड हैं, ठीक है. सेंटर में ये ब्रॉड है. तो और ये देखिए, दिस इज अ नर्व सेल. नर्व सेल जो है इट इज वेरी लॉन्ग, ठीक है. ये ब्रांच्ड भी है, देखिए यहाँ पर इसकी ब्रांचेस भी हैं. तो ये जो नर्व सेल है, इसको न्यूरॉन भी कहते हैं. ये नर्व सेल जो है, इसका फंक्शन क्या है? इट रिसीव्स मैसेजेस एंड ट्रांसफर्स मैसेजेस. इन ब्रांचेस के थ्रू इट रिसीव्स मैसेजेस एंड ट्रांसफर्स मैसेजेस, जो कि टू द ब्रेन, एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम स्किन ऑल्सो, स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो. तो इट हेल्प्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी. तो
अगर आप नोट करेंगे इन सारे, ये मैंने कुछ सेल्स जो हैं आपको शेप ऑफ सेल्स बताई हैं. द सेल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स. सो कैन यू गेस कि विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट्स इट्स शेप? ये जो पूरा सेल है, अगर आप देखोगे सबके बाहर एक बाउंड्री है. दिस बाउंड्री जो है इट इनक्लोजेस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. ये जो बाउंड्री है दैट इज इनक्लोजिंग ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, और इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, दैट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और प्लांट सेल्स में तो एक एडिशनल प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं. वील बी स्टडिंग अबाउट दिस सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इन द नेक्स्ट क्लास. Now, if you have looked at these cells, different shapes of cells, ये जो shape, different types of cells हैं, ये human body में भी present हैं, जिनकी different shapes हैं, और इनके function भी different है. और इनकी जो function है, basically जो इनकी shape है, that relates to its function, what it is doing. ठीक है? हमारी बॉडी में और दूसरी प्लांट एनिमल बॉडीज में भी डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स है. तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें एक वेरिएशन इन द शेप ऑफ सेल्स आल्सो कैन बी seen or it is observed. Now, shape of cells varies considerably in multicellular organism. ठीक है? और ये shape of the cell is related to its function. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो branches हैं ये help करेंगी to it to transfer messages. But even though cells differ in shape and size, they have something in common, some things in common. ठीक है ना? We'll be studying. But एक और चीज है जिसमें ये differ करते हैं. That is the size of the cell. The size of the cell in living organisms can be as small as millionth of a meter. 1 millionth of a meter को micrometer या micron कहा जाता है. And it can be as large as few centimeters also. जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं ना, ज्यादातर सेल्स आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड नॉट विजिबल टू अस विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. अनएडेड आईज से आप उनको नहीं देख सकते हैं. सो इन सेल्स को हमें एनलार्ज करना पड़ता है, या फिर आप कह सकते हैं कि मैग्नीफाई करना पड़ता है, तभी हमें नजर आते हैं. जो स्मॉलेस्ट सेल है ना, दैट इज ऑफ ऑलमोस्ट 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर्स, जो कि एक बैक्टीरिया है माइक्रोप्लाज्मा. और यहाँ पर लार्जेस्ट सेल जो है दैट इज एन ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच एग हमें ऐसे ही दिखाई देता है. तो ऑस्ट्रिच एग जो है दैट इज द लार्जेस्ट सेल, मेजरिंग अबाउट 170 mm to 130 mm. ठीक है? इतना लेंथ इनटू ब्रेथ आपको बता रहे हैं. जिस दैट इज जो एग है ऑफ ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड. तो उसका जो एग है दैट इज द लार्जेस्ट सेल. इवन जो एग ऑफ हेन है दैट इज अ सिंगल सेल, और उसको भी आप विदाउट द हेल्प ऑफ अनएडेड आईज आप देख सकते हो. तो साइज ऑफ सेल्स जो होते हैं दे हैव नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल या प्लांट. इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट नेसेसरी कि सेल्स जो हैं एलिफेंट में दे विल बी मच बिगर than the cells of a let's say an ant. The size of the cell is related to its function. जो हमने size की बात कर रहे हैं that is related to function but not related to the size of the organism. जो size of the organism है वो depend करता है number of cells पे, not in the size of the cells. ठीक है? तो जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, ये जो हमने नर्व सेल देखा है ना, ये नर्व सेल जो है ये ह्यूमन नर्व सेल है, न्यूरॉन है. लेकिन नर्व सेल्स जो है एलिफेंट में या रैट में या कैट में, वो सभी में ऐसे लॉन्ग और ब्रांच्ड ही होंगे. सभी एनिमल्स में ऐसे लॉन्ग और ब्रांच्ड होंगे. मे नॉट ऑफ दिस शेप बट दे हैव लॉन्ग एंड ब्रांच्ड. क्योंकि उनका बेसिक फंक्शन क्या है? सभी का बेसिक फंक्शन, चाहे वो रैट में प्रेजेंट है, चाहे वो कैट में प्रेजेंट है, चाहे ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट है, उनका काम है टू ट्रांसफर द मैसेज. और उसके लिए उनको ब्रांच भी होना पड़ेगा और लॉन्ग भी होना पड़ेगा. तो it does not mean कि elephant का nerve cell would be much longer when compared to the nerve cell of a rat or maybe an ant, because the size of the cell does not depend on the size of the animal, the body of the animal or plant, anything. All right, so you must know that
the number or the size of the cell has no relation with the size of the body of animal or plant. All right. Now, once we have come to know about all these things, we should know different levels of organization of cells. किसी भी multicellular organism में जो cells होते हैं, a group of cells form tissue and tissues together form an organ. जैसे कि stomach हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, एंड मेनी ऑर्गन्स टुगेदर जो कि एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एंड मेनी ऑर्गन सिस्टम टुगेदर form an organism. This you have to remember. Now coming to the structure and function of the cell. मैंने अभी जैसे डिस्कस किया है कि each living organism में बहुत सारे organ system होते हैं. Organism में organ systems होते हैं. We have digestive system, respiratory system, excretory system, reproductive system, integumentary system, nervous system, muscular system. तो हमारे ऐसे 10 such system है हमारी body में. And each organ system जो है, it has its own set of organs. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे इंटेस्टाइन है, हमारा स्टमक है, पैनक्रियाज है, लिवर है, दैट फॉर्म्स वन सिस्टम. तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस. ठीक है. एंड ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स जिनको हम कहते हैं टिश्यूज. अब टिश्यू को कैसे डिफाइन करेंगे? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स जो एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं, दे फॉर्म अ टिश्यू. एंड देन ऑल दिस, आफ्टर स्टडिंग ऑल दिस, कि जो सेल है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है. बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है. सो वी हैव कम टू नो कि ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम. बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो हैं, ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गन. ऑर्गन इज formed from tissues and tissues जो होते हैं they are formed from cells. तो ये बेसिक सिस्टम है. अब अगर हमें सेल के बारे में जानना है, सेल्स जो हैं डिफरेंट शेप के, साइजेस के हो सकते हैं, बट दे हैव समथिंग इन कॉमन. दे हैव सम थिंग्स इन कॉमन. इसका मतलब हुआ जितने भी प्लांट और एनिमल सेल्स हैं उनमें 3 बेसिक पार्ट हैं. 3 basic part are part of all the types of cells, चाहे वो plant में है, चाहे वो animal में है. First is cell membrane, second is cytoplasm, and third is nucleus. We'll be studying about these 3 parts and in general the structure of a plant cell, a typical plant cell and a typical animal cell in the next class.